Okay, so today we will be finishing off the questions that were asked in NEET exam as well as JEE exam. This questions belong to vectors, of course, because we have been studying vectors. So without wasting any of time, let's solve this question. Question number 9. If a vector, let us say this vector is a bar, 2 I cap plus 3 j cap plus 8 k cap is perpendicular to another vector which is b bar, that is 4 j cap minus 4 I cap plus alpha k cap, then the value of alpha is, जब दो vectors perpendicular होते हैं तो what we know is that the dot product of these two vectors is 0. A bar dot b bar is 0 क्योंकि a bar dot b bar is ab cos theta, theta is 0, cos 0 is 0, right? Correct है ना? परपेंडिकुलर की बात कर रहा हूं मैं. A bar dot b bar is ab cos theta, theta is 90 degree, cos 90 is 0, तो a bar dot b bar is 0. Good. हमको पता है I can write this as ax bx plus ay by plus az bz equal to 0. ax is 2, bx is 4, right? Correct. यहाँ पे होती है गलती, bx is -4 क्योंकि ये -4 I cap यहाँ पे है, तो जिसके साथ I cap हो वो bx होता है, plus az is 3, bz is ay is 3 and by is plus 4, az is 8 and bz is alpha which we are supposed to find out, that is equal to 0. तो -8 plus 12 plus 8 alpha equal to 0, तो आपको मिल गया 8 अल्फा इक्वल टू -4, तो अल्फा इज इक्वल टू -half, दैट इज द करेक्ट आंसर. क्वेश्चन सिंपल था, देयर इज नथिंग. देन नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ a bar cross b bar का mod of a bar cross b bar मतलब magnitude is equal to magnitude of a bar dot b bar, then the angle between a bar and b bar is, easy है. What is a bar cross b bar is ab sin theta. What is a bar dot b bar is ab cos theta. ab cancel, sin theta by cos theta equal to 1. You should know कि that is tan theta. tan theta की वैल्यू 1 कब होती है? theta equal to 45 डिग्रीज पे होती है. So again this was a simple question and quite simple, easy, nothing. सिर्फ a bar cross b bar का आपको डेफिनेशन पता होना चाहिए, that's it. Okay, next question. This question is from JEE syllabus 2002. That time I think the exam was called as AIEEE. The sum of magnitude of two forces is 18. So let us say we have two forces. I'll just call them F1 and F2. So F1 plus F2 is 18 and the resultant is 12. The magnitude of the resultant is 12. यहाँ पे confusion क्या होता है? Normally हम लोग लिखते हैं ना F1 plus F2 is equal to R. राइट, तो हम बोलते हैं F1 plus F2 18 और R 12. ऐसा कैसा हो गया? ऐसा नहीं होता क्योंकि ये वेक्टर हुआ तब ऐसा लिखते हो. मतलब मेरे पास एक वेक्टर है F1 और दूसरा वेक्टर है F2, अगर दोनों का डायरेक्शन सेम हुआ तो उनका सम जो है वो 18 हो सकता है, अगर डायरेक्शन सेम हुआ तो. अगर डायरेक्शन सेम नहीं हुआ तो जो रिजल्टेंट होगा दैट विल बी 12. so this is you have to understand, this is what you need to understand. Okay, if the resultant is at 90 degree with a force of smaller magnitude, तो मैं बोल देता हूं कि let F1 is smaller than F2, right? Therefore R bar मतलब resultant is perpendicular to F1. उन्होंने वैसा बोला है, resultant is at 90 degree with the force of smaller magnitude, मतलब ये F1 जो है इसको परपेंडिकुलर है R bar, मतलब F2 के पास ऑप्शन बचता ही नहीं है, F2 को ऐसा ही होना पड़ेगा क्योंकि हमको पता है R बार रिजल्टेंट होने के लिए जहाँ पे F1 खत्म हो रहा है वहीं से F2 स्टार्ट होना चाहिए, तो ऐसा ही सिचुएशन बनेगा, राइट. आपको पूछा है व्हाट आर द वैल्यूज ऑफ F1 एंड F2, तो सबसे पहले इस डायग्राम से आप लिख सकते हो पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके F2 बार इक्वल टू F1 बार प्लस R स्क्वायर. तो आप लिख सकते हो इसको
F2 स्क्वायर माइनस F1 स्क्वायर इक्वल टू R स्क्वायर। तो आप लिख सकते हैं इसको F2 माइनस F1 into F2 plus F1 equal to R square. Therefore, you can write down F2 minus F1, हम देखेंगे बाद में, F1 plus F2 that is 18 and R is 12, 12 square is 144. So this is 12 square, 144, this is 1 जा, this is 8 जा, तो आपको मिल गया F2 minus F1 equal to 8. Equation number 2, equation number 1. Adding equation number 1 and 2, दोनों को ऐड करोगे तो 2F2 is equal to 18 plus 8 is 26, तो F2 मिल गया आपको 13, तो F1 मिलेगा 5, तो आंसर शुड बी 5 and 13. ऑप्शन नंबर सी. लुक हाउ सिंपल इट वाज. अगर आपको लॉजिक पता है तो, अगर आपको लॉजिक पता है तो मैं सिंपल कर पाया, क्यों? नहीं तो फिर मुझे वो यूज करना पड़ेगा ना. क्या यूज करना पड़ेगा? रिजल्टेंट का फॉर्मूला R bar is equal to F1 square plus F2 square plus 2F1 F2 cos theta. इसको सॉल्व करो, cos theta की वैल्यू निकालो एंड सो ऑन सो फोर्थ. मुझे ये पता है कि अगर R bar F1 को परपेंडिकुलर है तो F2 हाइपोटेन्यूज ही होने वाला है. तो यूजिंग दैट आई कैन सॉल्व दिस इन अ सिंपलर वे. राइट, तो बाकी बुक्स में ऐसा नहीं दिया हुआ है, आपको खुद के लॉजिक्स बनाने पड़ते हैं अगर आपको ऐसे एग्जाम्स क्रैक करनी है तो. नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तो जोक है. वाई दिया क्या है? ए बार क्रॉस बी बार इक्वल टू बी बार क्रॉस ए बार. नॉर्मली ए बार क्रॉस बी बार इज माइनस बी बार क्रॉस ए बार बिकॉज यू नो वेक्टर प्रोडक्ट इज नॉट कम्यूटेटिव. तो ए बार क्रॉस बी बार और बी बार क्रॉस ए बार एक ही सिचुएशन में पॉसिबल है व्हेन द एंगल बिटवीन ए एंड बी इज ईदर जीरो. लॉजिकली सोचो, हमारे पास एक वेक्टर था ए, दूसरा वेक्टर था बी. ये ऊपर की तरफ था ए बार क्रॉस बी बार, नीचे की तरफ था माइनस या फिर बी बार क्रॉस ए बार. दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है, इसलिए हम लिखते थे ए बार क्रॉस बी बार एस माइनस बी बार क्रॉस ए बार, ऐसा लिखते थे. लेकिन ए बार क्रॉस बी बार और बी बार क्रॉस ए बार को अगर सेम होना है तो या तो ए बार और बी बार पैरेलल हो, सेम डायरेक्शन में हो, एंगल जीरो, या फिर दोनों के दोनों मतलब या फिर एंटी पैरेलल हो, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में पॉइंट कर रहे हो. प्रूव कैसे करेंगे? इजी है. देखो, ए बार क्रॉस बी बार माइनस बी बार क्रॉस ए बार इक्वल टू जीरो. बट ए बार क्रॉस बी बार इज इक्वल टू बी बार क्रॉस ए बार. therefore ए बार क्रॉस बी बार माइनस ए बार क्रॉस बी बार इक्वल टू जीरो. therefore आ गया, सॉरी ये इधर आया. ओके, सॉल्व कर लिया. जस्ट अ मिनट. ओके, सो बट व्हाट वी नो इज ए बार क्रॉस बी बार इज माइनस बी बार क्रॉस ए बार. माइनस आता है यहाँ पे, ये लॉजिक है. तो बी बार क्रॉस ए बार इज बाय लॉजिक माइनस ए बार क्रॉस बी बार. मैं वापस बता देता हूँ, डोंट वांट टू गेट कंफ्यूज. ये हमारा गिवन कंडीशन है, वहां से हमको मिल गया इक्वेशन नंबर 1. बट वी नो दैट बी बार क्रॉस ए बार इज इक्वल टू माइनस ए बार क्रॉस बी बार. इक्वेशन नंबर 2 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 आपको सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा. यू विल हैव बी बार क्रॉस ए बार क्रॉस बी बार और बी बार क्रॉस ए बार की जगह पे माइनस ए बार क्रॉस बी बार डालोगे इक्वल टू जीरो. देयरफॉर ए बार क्रॉस बी बार प्लस ए बार क्रॉस बी बार इक्वल टू जीरो. मतलब 2 टाइम्स ऑफ ए बार क्रॉस बी बार इक्वल टू जीरो, मतलब ए बार क्रॉस बी बार इक्वल टू जीरो. और दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट जीरो कब होता है? या तो एंगल जीरो होगा या एंगल पाई होगा. तो एंगल पाई होगा. सिंपल.
क्योंकि ए बी साइन थीटा आता है ना, राइट। तो थीटा जीरो तब जीरो, या तो थीटा 180 तब जीरो। सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत सिंपल क्वेश्चन है। द पोजिशन कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पार्टिकल मूविंग इन 3D कोऑर्डिनेट सिस्टम इज गिवन बाय x इक्वल टू a cos ओमेगा टी, y इक्वल टू a sin ओमेगा टी एंड z इक्वल टू a ओमेगा टी। द स्पीड ऑफ द पार्टिकल इज, ये थ्री डायमेंशनल मोशन है, तो speed of the particle will be v equal to under root of x component of speed square plus y component of speed square plus z component of speed का square। तो मुझे x से मिल जाएगा vx, because vx is dx by dt। और अभी आपको पता होना चाहिए, इतनी बार डेरिवेटिव हुआ है कि आपको पता होना चाहिए, ये आता है माइनस ए ओमेगा साइन ओमेगा टी। सिमिलरली vy is equal to dy by dt is equal to a omega cos omega t। Similarly, vz equal to dz by dt, that is equal to a omega। हमने ये डेरिवेटिव्स इतनी बार लिए हैं कि आपको पता होना ही चाहिए। Therefore, v is equal to under root of vx का स्क्वायर, मतलब माइनस ए ओमेगा साइन ओमेगा टी का स्क्वायर, तो ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस vz का स्क्वायर इज ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस vz का स्क्वायर ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। देयरफॉर v इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, पहले दो टर्म्स में से कॉमन निकाल लिया तो साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। देयरफॉर v इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस कॉस स्क्वायर ओमेगा टी इज 1 plus a square omega square, that is under root of 2 times of a square omega square, that is under root of 2a omega। है क्या ऐसा कुछ? है। ऑप्शन नंबर सी सिंपल था, एक्स वाई जेड दिया था, उस पर से आपको वी एक्स वी वाई वी जेड मिल जाएगा, एंड देन यू जस्ट फाइंड आउट व्हाट इज वी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। टू फोर्सेस पी एंड क्यू of magnitude 2f and 3f respectively are at an angle theta with each other, right? If q is doubled, तो ये केस 1 है। केस 1 रिजल्टेंट में बोलता हूँ r, that is equal to p square plus q square plus 2pq cos of theta, है ना। तो r is equal to under root of p की वैल्यू 2f, 2f का स्क्वायर 4f स्क्वायर प्लस 3f का स्क्वायर 9f स्क्वायर प्लस 2 into 2 into 3, क्योंकि 2 into 2f into 3f, 2 into 2 4 into 3 12, f square cos theta, cos theta not square, cos theta, करेक्ट। तो ये आपको मिल जाएगा, therefore r is equal to 13f square plus 12f square cos theta, करेक्ट। लेट अस कॉल इट एज इक्वेशन नंबर 1। अब क्या बोला है, ये पहला पार्ट खत्म, मतलब यहां से लेके तो यहां तक का। इफ द फोर्स Q is doubled, मतलब केस 2, P को चेंज नहीं किया, Q को हमने Q डैश बोल के 2Q कर दिया, मतलब 2 into 3 मतलब 6F हो गया। रिजल्टेंट ऑल्सो गेट्स डबल्ड, तो R2 is 2R, therefore R2 will be equal to under root of P square plus Q dash square plus 2PQ dash cos of theta। तो अभी जो जो हमारे पास वैल्यूज है, वी आर गोइंग टू सब्स्टिट्यूट दैट। देयरफॉर व्हाट इज R2 इज 2R, तो R2 क्या है हमारे पास, 2R है। P की वैल्यू क्या है, P की वैल्यू वही है जो थी 2F, मतलब 4F स्क्वायर, Q डैश 6F उसका स्क्वायर 36F स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 इंटू 6, है ना, 2 इंटू 2 इंटू 6 24F स्क्वायर
करेक्ट। cos थीटा 2, इसको cos थीटा 1 बोल देता हूं मैं, क्योंकि एंगल क्या होगा ये हमको पूछा है। आ गया ये आ गया इक्वेशन नंबर 2। देन नेक्स्ट स्टेप, next step is to divide next step is to divide these two things, है ना। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को कर दो डिवाइड, that is the next thing that you can do. Just a minute, let me make some space before I do that thing. Okay, now if I divide these two equations 1 and 2, it is pretty simple task for us to solve, because if I divide, let us say इक्वेशन 2 में भी 4f स्क्वायर और ये सब बाकी है, जस्ट अ मिनट, राइट। तो मुझे मिलेगा 2r इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 40f स्क्वायर प्लस 24f स्क्वायर cos थीटा 2, ऐसा मिलेगा इक्वेशन नंबर 2। देन यू हैव टू डिवाइड 2 and 1, सो इक्वेशन नंबर 1 बाई 2, तो r अपॉन 2r इज इक्वल टू अंडर रूट दोनों साइड पे है 13f स्क्वायर प्लस 12f स्क्वायर cos थीटा 1 और अपॉन 40f स्क्वायर प्लस 24f स्क्वायर cos थीटा 2। ये सब सॉल्व कर लेना है आपको, एंड देन आफ्टर सॉल्विंग दिस यू विल गेट करेक्ट आंसर। ओके, तो आपको आंसर मिल जाएगा। तो दिस विल बी लेफ्ट एज एन एक्सरसाइज, हाफ एग्जाम्पल। मैंने आपको बता दिया सॉल्व कैसे करते हैं, कुछ भी नहीं है, सिंपल टास्क। ओके, बहुत सिंपल सा टास्क है, सिर्फ सॉल्व कर लो इसको, जस्ट डिवाइड एंड देन सॉल्व, सिंपल, एक्सट्रीमली सिंपल। तो आई होप यू विल डू इट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमको ये करना जरूरी है कंप्लीट, तो वील हैव टू टेक केयर ऑफ दिस। सो two vectors a bar and b bar have equal magnitudes. The magnitude of a bar plus b bar is n times of a bar minus b bar. तो a bar plus b bar का magnitude of a bar plus b bar is n times of magnitude of a bar minus b bar, right? The angle between a and b is magnitude of a bar plus b bar हमको पता है अंडर रूट ऑफ a square plus b square plus 2ab cos theta, right? n times of under root of a square plus b square minus 2ab cos theta, squaring on both sides, squaring on both sides. Therefore what we will get is a square plus b square plus 2ab cos theta equal to n square a square plus b square minus 2ab cos theta। करेक्ट, मिल जाएगा, मिल जाएगा। इसको आपको सॉल्व करना होगा। You have to solve this, and it is a simple task, because they have told you the vectors a bar and b bar have equal magnitudes. So a is equal to b. Therefore what you will have is a square plus a square plus 2a square cos theta equal to n square a square plus a square minus 2a square cos theta। तो बहुत सिंपल हो जाता है। वाई? बिकॉज इसमें से 2a स्क्वायर कॉमन, 1 माइनस कॉस थीटा। इसमें से भी सेम सिचुएशन होगा, 2a स्क्वायर कॉमन और n स्क्वायर तो ऑलरेडी है ही बाहर, 1 माइनस कॉस थीटा। तो 2a स्क्वायर गया, ये 1 प्लस कॉस थीटा था, एंड यू हैव 1 माइनस कॉस थीटा ओवर देयर, राइट।
करेक्ट. तो यू जस्ट नीड टू सॉल्व दिस. इसको सॉल्व करो. दैट इज प्रीटी सिंपल. इट इज अ प्रीटी सिंपल टास्क. 1 प्लस कॉस थीटा एंड 1 माइनस कॉस थीटा, ये दो चीजें हैं, एक लेफ्ट हैंड साइड पे एक राइट हैंड साइड पे है. Why I am calling it as a simple task? Because it is a simple task. Therefore, what I can write is 1 plus cos theta is equal to n square minus n square cos theta. Therefore, what I will do is जहां जहां पे cos है उसको एक साइड पे लाऊंगा और जहां पे नहीं है वो टर्म्स को मैं अदर साइड पे ले आऊंगा. Therefore, what I can do is I can take out cos theta common. 1 plus n square minus 1. इसको सॉल्व करो. इसको सॉल्व करोगे तो what ultimately you will get is, just a minute, I will move all this little up so that I have space. मुझे space चाहिए. So yes, I have space now. So what I can do is this cos theta is n square minus 1 upon n square plus 1, which implies theta is cos inverse of n square minus 1 अपॉन n स्क्वायर प्लस 1. ऐसा है क्या? है क्या ऐसा? ऑप्शन नंबर बी में है. कितना सिंपल था. a प्लस बी का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू n टाइम्स ऑफ a माइनस b. बस सॉल्व करते गए. फिर a इक्वल टू b बोला है, मैग्नीट्यूड वाइज बोथ वेक्टर्स आर इक्वल. सॉल्व करते जाओ एंड यू हैव थीटा. राइट. सो प्रीटी सिंपल थिंग. नेक्स्ट एंड द लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम वेक्टर्स. No more lecture will be uploaded on this particular chapter now. There will be a test conducted which will be notified soon. So, आपको दिया है a का मैग्नीट्यूड, a1 का मैग्नीट्यूड, a2 का मैग्नीट्यूड, a1 प्लस a2 का भी मैग्नीट्यूड दिया है और आपको बोला है द वैल्यू ऑफ 2a1 प्लस 3a2 बार डॉट 3a1 माइनस 2a2 बार. इसका मैग्नीट्यूड निकालना है. क्या करो, इसको सॉल्व कर लो. हमको पता है, क्या पता है, पहला टर्म यहाँ का और फर्स्ट टर्म ऑफ फर्स्ट ब्रैकेट एंड फर्स्ट टर्म ऑफ सेकंड ब्रैकेट विल मल्टीप्लाई. तो आपको मिलेगा 2 इंटू 3 6 a1 बार डॉट a1 बार प्लस या माइनस ये पहला और ये दूसरा है ना. तो 2 इंटू 4 a1 बार डॉट a2 बार प्लस 9 a2 बार माइनस a1 बार माइनस 6 a2 bar dot a2 bar. This is equal to 6 a1 square, क्योंकि a1 bar dot a1 bar is a1 square, क्योंकि a1 bar dot a1 bar is a1 cos theta. दो सेम वेक्टर में एंगल 0 होता है, राइट. माइनस व्हाट आई कैन राइट इज 4 प्लस 9 इज 5, तो प्लस 5 आ गया. प्लस 5 क्योंकि a1 बार डॉट a2 बार इज इक्वल टू a2 बार डॉट a1 बार कम्यूटेटिव होता है, तो ये आ गया 5 टाइम्स ऑफ a1 डॉट a2 माइनस 6 a2 स्क्वायर. तो हमारे पास 6 a1 स्क्वायर, a1 की वैल्यू है अपने पास कितना है 3, 6 इंटू 3 स्क्वायर प्लस 5 a1 बार डॉट a2 बार. इसको देखेंगे बाद में, बिकॉज आई मीन बिकॉज दिस is 5 a1 a2 cos theta. We don't know cos theta, हम देखेंगे. Minus 6 a2 is 5 square, right? Correct. So what I can do is ये हम सॉल्व कर देंगे. 3 square is 9, 9 6 54 है ना. 54. 5 square is 25, 25 6 तो 54 plus 5 a1 a2 cos theta minus 25 6 150. Okay,
इसमें से थीटा मिसिंग है, cos थीटा की वैल्यू मिल गई तो सॉल्व हो जाएगा। तो क्या करेंगे, मॉड ऑफ a1 प्लस a2 तुमको दिया है 5, हमको पता है मॉड ऑफ a1 प्लस a2 कितना होता है, प्रोडक्ट ऑफ रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स क्या होता है, अंडर रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos थीटा इक्वल टू 5, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स और सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ a1 a2, a1 मतलब 3 प्लस a2 मतलब 5 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3 इंटू 5 कॉस थीटा और इक्वल टू 25, क्योंकि मैंने दोनों साइड पे स्क्वायर कर दिया है, ऑलरेडी स्क्वायर कर दिया है। ये दिस इज इंपॉर्टेंट थिंग, राइट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। तो ये मिल जाएगा 3 स्क्वायर इज 9 प्लस 25 प्लस 2 इंटू 3 6 इंटू 5 30 कॉस थीटा इक्वल टू 25। तो 25 तो यहीं पे कैंसिल हो गया आइडियली, करेक्ट, सिंपल था, गुड। तो आपको मिलेगा कॉस थीटा -9/30, राइट, तो -3/10 इतना मिल गया। ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दोगे आप यहाँ पे। सो व्हाट आई विल बी डूइंग इज दिस is equal to 54 plus 5 times of a1 a2 cos theta is -3/10 -150, राइट, ये 3 है। ओके, तो ये सॉल्व करना पड़ेगा आपको, 1 and 2 more or less। So to solve this, 5 3 15, 15 3 45, 45 by 2 with a negative sign, 45 by 2, 45 by 2 is how much, 22.5, 22.5 अगर मैं 54 तो ये आ जाएगा फाइनली, मैं जस्ट राइटिंग डाउन -22.5 एंड -150। तो सॉल्व करो, जो आंसर आएगा वो आएगा। दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू सॉल्व इट, बहुत इजी था। हमें जो गिवन एक्सप्रेशन का वैल्यू पूछा है उसमें डॉट प्रोडक्ट यूज किए हैं, a1 का मैग्नीट्यूड a2 का मैग्नीट्यूड दिया है, a1 प्लस a2 का मैग्नीट्यूड दिया है, वहां से cos थीटा का वैल्यू मिलेगा एंड देन यू आर गोइंग टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। तो बहुत इजी था। सो दिस पर्टिकुलर question marks the end of vectors. So this is done, right?